Good morning, students. Uh, Now let's move forward in our chapter Chaudhary's Lapse of Memory. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. Bipin Babu did not beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory, and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Chunni said 58. It must have been 58, or was it 59? तो स्टूडेंट्स आगे क्या होता है, बिपिन बाबू के दिमाग में ऐसा आता है कि चुन्नी से खुल के पूछ लेने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनसे कुछ भूल हो सकती है और चुन्नी बाबू को इसका सही सही उत्तर पता हो। तो उन्होंने फाइनली पूछ ही लिया चुन्नी बाबू को कि चुन्नी, तुम्हारी तो याददाश्त बहुत अच्छी है, याद करके बताओ तो कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। ऐसा पूछने पर चुन्नी ने कहा कि 58 या 59। You are sure that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. D, you mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. क्या होता है ये पूछने पर कि क्या हम 1958 में रांची ट्रिप पे गए थे, तो चुन्नी बाबू ने ये कहा कि बिपिन, तुम क्या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हो? जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है और तुम्हारी भी तो याददाश्त बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम रांची की जो हम सैर किए थे उस बारे में सभी भूल गए हो? विपिन बाबू को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। ऑफ कोर्स, यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. Vipin Babu sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो स्टूडेंट्स, अभी तक ये धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बिपिन चौधरी का जो उनकी जो याददाश्त है वो कहीं ना कहीं शायद मिट रही थी, क्योंकि ऐसी ही कुछ बात चुन्नीलाल ने कही। चुन्नीलाल ने कही कि तुम्हें क्या बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे की बुकिंग की थी रांची जाने के लिए, और तुम जिस ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा रहे थे वहाँ एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था, तो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला करके लाया और उस फ़ैन को मैंने सही करवाया। तुम सब भूल गए। तब विपिन बाबू ने गहरी सांस लेकर के सर हिलाया कि हाँ, मुझे तो कुछ याद नहीं। हाँ, पर जब चुन्नीलाल के द्वारा पूछा गया कि वो कौन सी नौकरी पहले करते थे या कौन सा काम करते थे, तो वो तो उन्हें याद रहा। उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंसी में तुम काम करते थे। तो मतलब
सिर्फ रांची ट्रिप को छोड़ करके उन्हें सारी बातें याद हैं। चुन्नीलाल के द्वारा कहने पर कि तुम्हारी यादाश्त ऐसी कैसी हो सकती है, वो गहरी सोच में पड़ गए और कोई जवाब नहीं दे पाए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary? I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो स्टूडेंट आगे ऐसा ही हुआ कि चुन्नीलाल ने ये बात बिपिन चौधरी को बताई कि ये बात सच है कि हम जो है मैंने तुम्हारे लिए ट्रेन में बुकिंग करवाई थी और तुम रांची ट्रिप पे 1958 में गए थे। जब अपने जिगरी दोस्त से विपिन चौधरी ने ये कन्फर्मेशन पा लिया कि वो रांची ट्रिप की बात भूल रहे हैं, तब उनको कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। फिर जो है वो अपने दोस्त के साथ एक डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए जो दिमाग का डॉक्टर था। डॉक्टर का नाम था परेश चंदा। वो एक जवान डॉक्टर था जिसकी चमकीली आंखें थी और नुकीला या तीखा नाक था। जब उन्होंने बिपिन चौधरी की सारी बातें सुनी तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत भयानक बीमारी हो सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की बीमारी कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट अपने जीवन का कोई व्यक्ति भूल गया है और बाकी सारी बातें उसको याद है, ये डॉक्टर चंदा के लिए भी एक अनोखा अनुभव था। भाई कोई अगर आदमी कुछ भूलता है तो वो जो है कई साल की बातें भूल सकता है, पिछली कुछ साल की बातें भूल सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट जो कि शायद एक आध महीने का होगा या 1 से 2 महीने का वो ट्रिप रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1 महीने का बात, 1 महीने की, किसी 1 साल की 1 महीने की घटना किसी व्यक्ति के द्वारा भूलना और बाकी पूरी बातें याद रहना, पूरे जीवन की बात याद रहना, ये एक अपने आप में एक अजूबा था। और डॉक्टर चंदा ने कहा कि इस प्रकार का केस तो वो कभी सुने नहीं या अपने अनुभव में कभी पाए नहीं, हालांकि उन्होंने एक सजेशन देना चाहा। बिपिन बाबू leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode was slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you to your trip, which is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential, or the symptoms will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा एक सुझाव दिया था ये डॉक्टर ने, हमें मानना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सुझाव डॉक्टर का था। वो ये था कि अगर आपको वो घटना याद नहीं आ रही कि आप रांची ट्रिप में गए थे, तो मेरा सुझाव ये है कि आप एक बार रांची दोबारा जाओ, थोड़ा सा वक्त वहाँ बिताओ, कुछ दिन बिताओ। हो सकता है कि उसी जगह अगर आप वहाँ पहले गए हुए हो तो उसी जगह दोबारा जाने पर आपको शायद वो पहले की सारी बातें याद आ जाए। ये कोई असंभव बात नहीं है, ये संभव है, ये हो सकता है। हालांकि डॉक्टर ने उनको सिर्फ नींद आने की, एक अच्छी नींद आने की, साउंड स्लिप लाने की एक अच्छी सी टॉनिक या दवाई दी और ये कहा कि मानसिक रूप से जब आदमी थोड़ा सा
अस्वस्थ होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो होती है नींद। अगर उस व्यक्ति को नींद प्रॉपरली दी जाए तो उसको बहुत बेहतर महसूस होता है। तो इस तरह से अच्छी नींद की गोलियाँ या टॉनिक देने के बाद डॉक्टर ने उन्हें ये सलाह दी कि भाई आप एक बार रांची घूम के आओ। विपिन बाबू अपने घर आ गए, रात को वो दवाइयाँ ली। अगली सुबह जब उठे तो उन्हें बेहतर लगा और फिर वो अगली शाम तक रांची जाने के लिए टिकट कटवा लिए। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. He came out of the station, took a taxi, and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hill, with none of this had he the slightest acquaintance. Would a trip to the Hudru Falls help? He did not believe so, but at the same time, he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. स्टूडेंट्स, हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो अजनबी व्यक्ति था जिसने विपिन चौधरी को मतलब बुक स्टॉल में मिला था, वो इस चैप्टर की शुरू में ही हमने जो पढ़ा था, वो अननोन व्यक्ति जो विपिन चौधरी को एक बुक स्टॉल में मिला था और लगातार पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने विपिन चौधरी की पास्ट के बारे में बताया। उसने ये बताया था कि किस तरह से विपिन चौधरी अपनी पत्नी को खो चुका है, वो उसे पता है। विपिन चौधरी का एक भाई था जो किसी घटना की वजह से पागल हो गया था और फिर वो पागल भाई का भी देहांत हो गया, यानी उसने अपनी पत्नी को खोया, उसने उसने अपने जो है पागल भाई को खोया। ये सारी बातें उस अजनबी व्यक्ति को पता थी और अजनबी व्यक्ति का ये कहना था कि विपिन चौधरी जो थे वो रांची ट्रिप में आए थे, तब वो व्यक्ति उनसे मिला था और विपिन चौधरी ने अपनी कुछ पर्सनल बातें शायद उस अजनबी से बस यूं ही शेयर की होगी। तो ये बात तो है। तो एक अजनबी व्यक्ति इतनी बातें क्यों कह सकता है? और वहाँ तक भी अगर विपिन चौधरी झूठ भी मान ले तो उसका सबसे जिगरी दोस्त चुन्नी लाल ये क्यों झूठ बोलेगा कि वो रांची गए थे? लेकिन देखो क्या होता है। और वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि वो हुड्रू हिल में गए थे। हुड्रू जो वाटरफॉल है, हुड्रू वाटरफॉल में वो गए थे घूमने के लिए और वहीं जाते वक्त उनके घुटने में चोट भी लगी थी। तो इतनी बातें उस अजनबी ने कही थी, ये हमने पढ़ा। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरते हैं, ट्रेन की बुकिंग उन्होंने कर ली अगले दिन और रांची के लिए, और रांची जब वो ट्रेन में उतरते हैं कुछ घंटे बाद, शाम को बैठे और अगली सुबह में उतर गए, यानी कि लगभग 10-12 घंटे की जर्नी होगी। अगली सुबह जब वो रांची उतरते हैं तो उनको ये महसूस होता है, मतलब अभी वो घूमे नहीं है ठीक से, स्टेशन उतर करके उनको एकाएक महसूस होता है जैसे वो रांची कभी नहीं आए हैं। वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और उस शहर को यानी रांची शहर को थोड़ी सी घूमते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं रांची शहर में। कार में बैठे बैठे, टैक्सी में बैठे बैठे वो रास्तों को निहारते हैं, बिल्डिंग्स को निहारते हैं, होटल्स देखते हैं, बाज़ार्स देखते हैं, मोराबादी नाम के एक हिल यानी पहाड़ी को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता कि वो जैसे पहले कभी आए हो। उन्हें लगता है कि इतना कुछ देखने के बाद उन्हें याद आ जाना चाहिए, लेकिन याद नहीं आ रहा, इसका मतलब शायद वो नहीं आए हैं। फिर अचानक उन्हें एक बार फिर से एक बात याद आती है कि वो अजनबी भी जोर दे करके बोल रहा था कि ये हुड्रू हिल में घूमने गए थे, हुड्रू वाटरफॉल में घूमने गए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो होटल्स बिल्डिंग्स वगैरह देख के तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्यों ना एक बार हुड्रू वाटरफॉल घूम के आया जाए। हो सकता है अगर मैं वास्तव में यहाँ पे आया हुआ हूँ पहले, तो मुझे ये तो याद आना ही चाहिए कि मैं हुड्रू वाटरफॉल में आया हूँ। तो उन्होंने सोचा कि हर प्रकार की कोशिश करके जाना ही ठीक रहेगा, इसलिए वो अपनी जो टैक्सी थी उससे जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ आए और फिर दोपहर में वो हुड्रू वाटरफॉल की तरफ रवाना हो गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers
discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, I am finished. There is no hope left. Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly for no hope for. तो देखो स्टूडेंट्स, शाम को 5 बजे वो हुड्रू वाटरफॉल में घूमने गए थे और न जाने क्या हुआ कि वो वहाँ बेहोश हो गए। तो 2 गुजराती लोग आकर के उन्हें उठाए और होश में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आती, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर और कुछ घंटे कुछ घंटे सारी रात बिताने के बाद रांची में अगली सुबह वो वापस कलकत्ता आ गए। यानी कि रांची में वो करीब 1 दिन के आसपास रहे और फिर वो वापस कलकत्ता आ गए। उस एक ही दिन में उन्होंने रांची को थोड़ा बहुत घूम भी लिया शहर को, और हुड्रू वाटरफॉल में भी चले गए, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। कलकत्ता वापस आ गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letterbox. A greenish envelope with his name in red ink on it. Above the name it said, urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. It's so difficult for you to help out an old friend down on his luck. I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now, and a novel I have written is being considered by a publisher. If we fix it enough, it will see me through the next few months. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. So student, क्या हुआ, घर आने के बाद जो है बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को फ़ोन करके कहा कि वो आ जाए। डॉक्टर चंदा आए। इससे पहले कि डॉक्टर चंदा आए, डॉक्टर चंदा को उसने इसलिए बुलाया था क्योंकि वो कंफर्म हो गए थे कि उनकी मेमोरी लैप्स हो चुकी है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रांची का वो भूल चुके हैं लगभग। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर चंदा उनके घर आते, एक एनवलप उनका नौकर ले करके बिपिन बाबू के पास आता है और उसके ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ये लेटर शीघ्र दिया जाना ज़रूरी है और ये एकदम गुप्त रखना भी ज़रूरी है। हालांकि बिपिन बाबू अपने आप को बेहतर नहीं महसूस कर रहे थे। वो बेड में आराम कर रहे थे और अपने सर के ऊपर आइस बैग लगा के उन्होंने रखा था। लेकिन बिपिन बाबू जो थे वो सोचे कि इस लेटर को पढ़ ही लिया जाए, तो उन्होंने लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर लिखा हुआ था चुन्नी लाल के द्वारा। उन्होंने लिखा था कि दोस्त, तुम्हें भगवान ने इतनी संपत्ति दी है, क्या
इतनी संपत्ति पाने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। दोस्त, मैं तुमसे कई बार मदद मांगने आया, लेकिन तुमने मेरे बुरे भाग्य की हमेशा बुराई की और मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास कल्पना शक्ति है, और उस कल्पना शक्ति से मैं नई नई घटनाएं या नई नई फिक्शनल स्टोरीज लिखने के काबिल हूँ। तो मैंने अपनी इमेजिनेशन से तुम्हें थोड़ा सा ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि अगर आप में कोई मुसीबत आए और आप उस चीज़ को फील करो तो आपको कैसा लगता है। तो ये सब मेरे द्वारा छोटा सा बिछाया हुआ जाल था, तुम्हें कुछ एहसास दिलाने के लिए कि जो कष्ट में हो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब ठीक हो। मैंने एक नॉवेल लिख लिया है जो एक पब्लिशर को पसंद भी आ गया है, और अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ ही महीनों में मेरे साथ भी सब सही हो जाएगा, ऐसा चुन्नीलाल ने लिखा। फिर जब शाम को डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूँ सर, मैं रांची से आकर के ठीक हूँ। हालांकि डॉक्टर चंदा को ये नहीं पता कि बिपिन चौधरी के साथ चुन्नीलाल के द्वारा एक बिछाया हुआ ये जाल था, और बिपिन चौधरी की से चुन्नीलाल ने मजाक किया था। ये उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि बिपिन चौधरी ने वो सारी बातें डॉक्टर चंदा को बताई भी नहीं। डॉक्टर चंदा ने तो बस इतना ही कहा कि ये बड़ा अनोखा केस है कि कोई एक पर्टिकुलर मंथ की घटना कोई व्यक्ति भूल गया हो। ये बड़ा ही अनोखा केस है और ये मैं मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। विपिन बाबू ने कहा, मैंने आपको इसीलिए बुलाया था कि रांची में मैं थोड़ा गिर गया था, मेरे कूल्हे में हिप में चोट लगी थी और वहाँ दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे कोई पेन किलर लिख करके दे सकते हैं? बस इतना ही। तो इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और इस कहानी में एक बहुत ही अनोखा इसका अंत हुआ है इस कहानी का। इस कहानी से ये समझ में आया हमें कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो है अगर रियल मुसीबत में हो और वो आपसे कोई हेल्प मांगने आता है और आपके पास क्षमता हो तो उसको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। उसे बहुत बुरा लगता है। अमूमन पहली बात तो कोई जल्दी से किसी के यहाँ मदद मांगने जाता ही नहीं है, और अगर कोई जाए तो उसको मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मदद मांगने आया है तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में होगा। ये बात चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को महसूस करवा दी, और इसी तरह से ये कहानी खत्म हुई। तो इस कहानी से हमें इस कहानी से जो सच निकल के आया सामने कहानी के एंड तक, वो ये है कि बिपिन बाबू के ऊपर चुन्नीलाल ने एक प्रकार का मजाक किया था। ये सारा चुन्नीलाल के द्वारा बिछाया हुआ जाल था, बिपिन बाबू को एहसास दिलाने के लिए कि ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की ज़रूरत, यहाँ ज़रूरत पैसों की नहीं हो रही, ज़रूरत जैसे यहाँ पे बिपिन चौधरी की मेंटल इलनेस, हेलुसिनेशन, या एक प्रकार से मेंटल इलनेस जो उनका क्रिएट किया गया था, एक तरह से उनको एहसास दिलाया गया था कि आप मेंटली इल हो। तो उस स्थिति में भी, यानी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ है, उसकी भी अगर हेल्प करने की ज़रूरत हो और आप हेल्प ना करो तो उसको बहुत बुरा लगता है। सेम उसी प्रकार से अगर किसी को आर्थिक सहायता चाहिए और आप हेल्प नहीं करो तो जैसा उसको बुरा लगता है, किसी भी प्रकार की ज़रूरतमंद को, चाहे वो पैसे की, को वो इंसान पैसे का ज़रूरतमंद हो या अन्य किसी हेल्प का ज़रूरतमंद हो, उसकी हेल्प ना की जाए तो उससे वैसा ही बुरा लगता है। चुन्नीलाल ने शायद ये बात समझ ली थी, और होपफुली अब चुन्नीलाल में बदलाव आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में वी विल डील विद द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। होप यू स्टे एट होम। सो स्टे एट होम, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फॉर टुडे।